الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ یہ ایک جعفر ہے عبد الخالد دیوبندی۔ اس شخص نے یہ کہا کہ ہم صحابہ کو فالو کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں گے، اور جو ان کے طریقے عقیدے پر سے ہٹے گا اس کو نہیں مانیں گے۔ تو جب ہم نے اس کو اسی کے مولانا اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کی وہ عبارت دکھائی، جس میں اس نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اور اس توہین کو جب ہم نے اسے دکھایا تب یہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے مولانا تھے، لیکن اس سے جب ہم نے کہا کہ اب تو نے چھوڑ، تو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ دیوبندیوں کی مکاری ہوتی ہے، اور یہ دیوبندی اتنے بڑے مکار ہوتے ہیں کہ اپنے اکابروں کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین برداشت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اکابروں کے ساتھ میں جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اپنے اکابروں کے ساتھ میں، کیونکہ انہوں نے بھی کفر کیا اور یہ اپنے اکابروں کے کفر کو بچا رہے ہیں، تو یہ بھی لہٰذا ان کے ساتھ ساتھ کافر مرتد ہو کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری توہین کی، وہ مٹی میں مل گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، اور ان کو ذرا سری بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر تعویلیں کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، کہ وہ عقیدہ نہیں ہوگا، جبکہ اس نے صاف صاف کتاب میں لکھا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو اب یہ اس کی تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، اور تعویل کرنے کے لیے کوئی گنجائش ان کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے یہ تعویل کر سکے۔ اور تعویل کس بات پہ کریں گے جب اس نے صاف صاف بول دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ توہین اس نے کر دی۔ تو اب یہ اس کی کیسے تعویل کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ایمان کو نہیں، اپنے مولانا کو بچانا ہے۔ تو اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں، پورا سنیں، اور اس میں ہم نے الحمدللہ ریفرنس بھی دیے ہیں، جہاں جو بات بولی ہے وہاں اس کتاب کا حوالہ بھی الحمدللہ لگایا ہے، اس کو بھی ذرا دھیان سے سنیں اور ملاحظہ کریں۔ آپ کون بول رہے جناب؟ میں جعفر بول رہا ہوں، کہاں سے؟ بہار۔ ہیلو امن بھائی۔ جی ہاں یہ جعفر ہے، اہل سنت والجماعت میں کچھ بات کرنے بولے تھے، وہ بندی ہے یہ سامنے والا۔ اچھا، دیوبندی ہیں جی۔ ادھر بہت شور ہے، اس میں میوٹ کر رہا ہوں۔ ہیلو، جی جعفر بھائی بتائیں۔ ہاں آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں امن علی قادری بریلی شریف سے۔ علی قادری، اچھا ہاں بولیے۔ ہیلو، بتائیں۔ ہاں بولیے نا، یزدانی بھائی کال سے بات کرانا چاہ رہے ہیں، کس موضوع پہ؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اہل سنت والجماعت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ہاں ہاں، وہی کہ اہل سنت والجماعت کے موضوع پہ بات کرنے کی۔ کیسے موضوع؟ یہ کہ اہل سنت والجماعت آج کے دور میں ہے کون؟ اہل سنت والجماعت آج کے دور میں ہے کون؟ جی 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 اسی موضوع پہ آپ تحقیق کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب اس موضوع پہ بات کرنی ہے، کیونکہ سبھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جی بریلوی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ جی تو اسی موضوع پر بات کرنی ہے۔ تو بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کہتے کس کو، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس جماعت میں آتا کون۔ اچھا اچھا، جی جی آپ کو نہیں پتا کہ اہل والجماعت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ چلے ہیں کا طریقہ ہے،
تو پھر اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ صحابہ کرام کے طریقے پر، عقیدے پر کون سی جماعت ہے؟ جو جماعت اس عقیدے پر ہوگی وہی حق پر ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ جی 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 کہاں جا رہا ہلو جی ہاں ہاں تو وہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے، ہم تو دیوبند والوں کو سمجھتے ہیں، ہم دیوبندی تو یہی بولتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دیوبندی لوگ ہیں۔ آپ بریلی ہے تو آپ بولتے ہو کہ نہیں بریلی والے ہیں، ہے نا؟ جی تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوگی اور ان کے عقیدے جی پر جی ہوگی وہی حق پر ہوگی۔ جی ہاں وہی حق پر ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو نبی اور صحابہ کا طریقہ اختیار کرے گا وہی حق پر ہے، ہاں جی اس میں کوئی دو رہے ہیں۔ اور جی ہمارے جی حساب سے وہ جماعت اہل سنت والجماعت دیوبندی حنفی ہیں۔ اچھا اچھا، آپ کے مطابق وہ جماعت دیوبندی حنفی ہے، تو آپ جی اس جی چیز کو ثابت کریں کہ ان کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں پر کیسے مشتمل بیٹھ رہے ہیں۔ جی آپ کے دیوبندیوں کے عقیدے صحابہ کے عقیدے پر برابر بیٹھ رہے ہیں، یہ ثابت کریں۔ ہاں دیوبندیوں کا دیکھیے جو بھی ہوگا اس میں کوئی یہ نہیں، میں تو بول رہا ہوں دیوبندی، لیکن اگر کوئی دیوبندی بھی اگر نبی اور صحابہ کے طریقے پہ یا ان کے عقیدے پہ نہیں ہے تو وہ اہل سنت پہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بریلی ہے، اگر ان کا عمل اور عقیدہ دیکھا جائے کہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہے تو حق پر ہوں گے۔ معیار حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیں ہے نا؟ دیوبندی جی جماعت اپنے اکابروں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی دیوبندی جماعت اپنے اکابروں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، یہ کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ اگر آپ کے اکابر آپ کے ہمارے سنیے، اکابر جو ہیں اچھا بول لیجیے، آپ بول لیجیے، جی بولیے کیونکہ بولیے۔ اگر آپ کے اکابر بیچ میں سے ہٹ جائیں، جیسے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانا توی اور شاہ اسماعیل دہلوی، جی ہاں تو اگر آپ کے یہ اکابر راستے میں سے ہٹ جائیں تو آپ کی دیوبندی جماعت باقی رہے گی یا نہیں، یہ بتائیں پہلے۔ ہمارے لیے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حجت ہیں۔ ہم غوث پاک کو بھی حجت نہیں مانیں گے امام اعظم کے مقابلے میں۔ اشرف علی تھانوی تو بہت بات کی چیز ہے، ہم خواجہ اجمیری کو بھی حجت نہیں مانیں گے امام اعظم کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ اشرف علی تھانوی اور قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی میری بات وہی ہے کہ جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہے، اور الحمدللہ ہم دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو آپ دیوبندی اپنے سنیے، آپ دیوبندی اپنے اکابروں پر آپ اپنے دیوبندی اپنے اکابروں کو مانتے ہیں؟ ہمارے بڑے اکابر سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہیں، پھر ائمہ اربعہ ہیں، اس کے بعد والے چلیے ہیں۔ جب وہ ہیں تب تو اور بہتر بات ہے، کیونکہ پھر آپ کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں مسلک ہم کیا بتا رہے ہیں، اشرف علی نہیں چلتا، ہمارے ہاں بس مسلک امام اعظم چلتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے خلاف ہمارے اکابروں کے عقیدے چلے گئے تو ہم انہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ کسی کا بھی ہمارے اکابر کے ہم تو بولے نا کہ امام اعظم کے مقابلے میں ہم غوث پاک کو بھی حجت نہیں مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، کیونکہ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جی الحمدللہ۔ جی تو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں، اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ اکرام کے عقیدوں سے آپ کے اکابروں کے جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانا توی اور شاہ اسماعیل دہلوی، ان کے عقیدے اگر صحابہ اکرام کے عقیدوں سے الگ بیٹھے تو آپ ان کو ٹھکرا دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہم
गौस पाक को ठुकरा देंगे मेरे भाई, हाजत मेरे को ठुकरा देंगे, हम तो बोल रहे हैं अपने बात की चीज है। चलिए हम गौस पाक को हक पे इसीलिए मानते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सहाबा कराम के तरीके से चले, उनके मानने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पे लाजिम था कि सहाबा का तरीका अपनाए, तो उलमा देवबंद पे भी लाजिम है कि नबी और सहाबा का तरीका अपनाए, सब पे लाजिम है। अहमद रजा पे भी लाजिम है और अशरफ अली थानवी पे भी लाजिम है। नबी और सहाबा के तरीके से हटेगा मेरे भाई, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस शरीफ है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, जी जी जी, और मेरी उम्मत में 73 होंगे जी। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। जी जी, ठीक है जी। सहाबा ने पूछा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा फिरका है जो जन्नती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर है। जी जी, ठीक है। हाँ, तो अब मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर सहाबा इकराम के अकीदों से या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आपके अकाबिर जो हैं इस वक्त मौजूदा हाल में, मैं फिर से एक बार दोहरा लेता हूँ, उनके अगर अलग अकीदे बैठे तो आप उनको ठुकराएंगे ना? हम तो बोल रहे हैं मेरे भाई कि ये तो बाद का चीज है, हम गौस पाक को ठुकरा देंगे, ये हम सोच लीजिए, ये तो बहुत छोटे हैं। चलिए पाक रहमतुल्लाह अलैह को भी मजबूर मानते हैं कि सहाबा के तरीके पे चलने पे वो मजबूर हैं जी, ये मेरा मानना है। चलिए तो आपकी सुनिए को ठुकरा देंगे तो क्या हम अहमद रजा को अपना लेंगे? हमारे लिए सहाबा कराम हो जाता, हम मसलक आप लोगों की तरह मसलक आला हजरत नहीं, बल्कि हम मसलक इमाम आजम, और हमारा इमाम गौस्ताद के इमाम से भी अफजल है, ये हम मानते हैं मेरे भाई, और सुन्नत वल जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जी जी। तो फिर सबसे पहली बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम था तक़वियतुल ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी किताब है, बोलिए जी। उसके काम की इतनी तारीफ की गई है, माशाअल्लाह। हम तो मेरी बात पूरी होने दें, अच्छी किताब मानते हैं। जी जी जी। तो अब मैं वो पढ़ रहा था तक़वियतुल ईमान, लिखा हुआ था कि ये किताब शाह इस्माइल दहलवी ने लिखी है, ठीक है, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने उस किताब के बारे में कहा है, फतवा दिया है कि इसको घर में रखना ऐन इस्लाम है। जी जी जी, यानी हाँ, यानी जिसके घर में ये किताब नहीं है वो इस्लाम से बाहर है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब वो नहीं हुआ। ऐन इस्लाम किसे कहते हैं? देखिए हमारे अकाबिर जो ऐन इस्लाम ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे मेन इस्लाम यही है। नहीं, ऐन इस्लाम मतलब कि तक़वियतुल ईमान जो है, जब दुश्मनों ने, बिदअतियों ने, कब्र पुजारियों ने, मज़ार पुजारियों ने इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम लगाया कि बाबा को मानवे नहीं करते हैं, कुछ खाली सहाबा करते हैं, तो भाई हमारे लिए तो सहाबा हुज्जत है, करोड़ों गौस एक तरफ, एक सहाबा एक तरफ, ये हमारे लिए है, तो हमारी मजबूरी है भाई। हम तभी आपको बोले कि गौस्ताद भी मजबूर हैं, गौस्ताद सुने सहाबा की तारीफ पे चले, सहाबा के तरीके पे चले, मानते हैं? सुने ना भाई, सुने मेरी बात सुने। जी। अशरफ अली रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया कि इसको अपने घर में रखना तक़वियतुल ईमान को ऐन इस्लाम है। जी ना, तो मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इस किताब के पेज नंबर 100 पे लिखा है, हाँ, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हाँ, तो शाह इस्माइल दहलवी ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। तो अब मुझे ये बताएं कि किन सहाबी का ये अकीदा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए? हाँ, अब वही मैं बता रहा था, सबसे पहली बात यह है कि हमारी किताब की तशरीह हम करेंगे। जी करें।
तो उसी किताब में लिखा कि मर कर मिट्टी में मिलने का मतलब ये हो गया कि मिट्टी में दफन होना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हम अपने बारे में हुजूर फरमाए अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने हैं, एक मिट्टी में ही दफन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद का ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अथर में हयात में है ना। आपके अहमद रजा का अकीदा है कि नबी मुर्दा है, लेकिन हमारे उलमा देवबंद का अकीदा है कि कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अथर में हयात से हैं। लेकिन शाह इस्माइल दहलवी तो लिखते हैं, सुने, शाह इस्माइल दहलवी तो लिखते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। तो मिट्टी में मतलब जनाब मर कर, सुने मर कर समझ गए आप, मर कर मिट्टी में मिल गए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सुने वो ये कह रहे हैं मर कर मिट्टी में मिल गए, ये नहीं कह रहे हैं कि जिंदा होकर मिट्टी में मिल गए। समझ गए आप, मर कर मिट्टी में मिलने का मतलब क्या होता है? यानी जिंदा नहीं है, मिट्टी में मिल गए। ना नहीं, क्या साफ साफ तो लिखा है मेरे भाई। हमारी अब देखो आपके अहमद, एक मिनट, अगर कहीं पर सुने मुर्दा लिखा, हमारे नबी को मुर्दा नहीं लिखते हैं। क्या लिखा है? तो ये किसी भी सहाबा आगे बढ़े, सुने आगे बढ़े चले। मिट्टी में मिलने वाला हूँ तो कब सजदे के लायक हूँ। सजदा तो उसी, सुनते रहे, सजदा तो उसी पाक जात के लिए है जो कभी न मरने वाला है। ठीक है, यानी शाह इस्माइल दहलवी ने, सुन तो ले जनाब, बोला मत करें बीच में। यानी उन्होंने ये लिखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ तो मुझे सजदा ना करो, क्योंकि सजदा तो सिर्फ उसे करो जो कभी नहीं मरने वाला है। यानी उसने ये अकीदा दिया कि सरकार मर चुके, माज़ अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुने अब, एक मिनट, सुन ले सुन तो ले जनाब, सुन ले जनाब। हाँ, बात हो रही है आपके अकाबिरों पर। अभी इमाम अहमद रजा पे जाएंगे तो टॉपिक दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आप बोले ना कि जो नबी को मर जाने के लिए ये करें तो काफी है। आपने कहा आपका अहमद रजा ने सलाम के लिए साफ लिखा है कि मैं मर गया हूँ और मेरे मिट्टी मतलब कि वो मुर्दा उठाया जाऊंगा, सलाम हो मेरी मरने पर, ऐसा लिखा है, तो भेज दूंगा। तो आप अपने अहमद रजा को काफिर बोलिए। अभी मैं उनका दिफा अब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपकी किताब की इबारत की बात कर रहा हूँ। पहले इस पे बात कर ले। किताब को बता रहा हूँ ना जनाब, सुने, अगर आप इस पे बात नहीं कर सकते, अगर आप इस पे जवाब दे दें मुझे और आप अपने अकाबिरों पे बात कर ले, तो उसके बाद मैं अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह पे बात कर लूंगा आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ पहले आप अपने तो अकाबिरों का दिफा कीजिए। अब मुझे आप ये बताएं, किस सहाबी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए? किस सहाबी का अकीदा है, बताएं। नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु सहाबा जो करोड़ों गौस के अफजल है। आप पहले तस्लीम कर लीजिए मेरे भाई, फिर मैं सहाबा की तारीफ कर रहा हूँ। आप ये मान लीजिए कि सहाबा करोड़ों गौस से अफजल है, करोड़ों ख्वाजा से अफजल। आप इतना बोलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे हक को। हाँ, बिल्कुल है। और हम लोगों का ये अकीदा है कि नबी अपने रोज़ा में हयात में, मेरी बात समझ लीजिए। लेकिन आपके शाह इस्माइल दहलवी तो लिख रहे हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। नहीं, उसके कहने का क्या मतलब है वो मतलब इसी किताब में लिखा होना था ना जनाब। उनके कहने का जो मतलब है वो इसी किताब में लिखते ना वो नीचे। हम कायल है मेरे भाई, इस्माइल दहलवी। आप कायल हो? एक मिनट, इस अकीदे में आप शाह इस्माइल दहलवी को छोड़ते हैं, ये बताएं। शाह इस्माइल दहलवी तो गौस जैसे अल्लाह के वली है मेरे भाई, उनको कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये क्या, तो ये यहाँ शाह इस्माइल दहलवी ने, सुने, यहाँ कुफर कर दिया, क्या कहेंगे आप?
शाह इस्माइल दहलवी को जब आप नहीं छोड़ रहे हैं तो उनके कुफ्र का जवाब दें। शाह इस्माइल दहलवी, ख्वाजा नूरी रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह के वली है मेरे भाई। वो तो जनाब लेकिन उनकी किताब में तो नहीं है मेरे भाई, उन्होंने कभी भी या गौस नहीं पुकारा, वो या अल्लाह पुकारा मेरे भाई। सहाबा कभी भी या गौस जैसा। अरे यजदानी भाई, अब ये बातचीत कहाँ कर रहे हैं ये, इन्हें समझाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि शाह इस्माइल दहलवी जो है आपके, सुने, तो हम कैसे छोड़ देंगे मेरे भाई, वो तो अरे कैसे ना ही छोड़ेंगे आप शाह इस्माइल दहलविया को हमें फालतू की यार खुराबात। ये बताओ उनकी किताब में लिखा पड़ा है, साफ साफ तो लिखा हुआ है। शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो तो गौस पाक जैसे अल्लाह के वली हैं, उनको अरे कैसे है, चलिए ये बताएं, गौस पाक ने अपनी कौन सी किताब में लिखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए? कौन सी किताब में लिखा? मेरे बात समझ लीजिए। सहाबा से आपके शाह इस्माइल दहलवी का अकीदा हो गया अलग, तो लिहाजा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, और तुम्हारे शाह इस्माइल दहलवी ने कह दिया, शाह इस्माइल दहलवी ने कह दिया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ठीक है, तो लिहाजा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अकीदे के मुताबिक आपके शाह इस्माइल दहलवी का अकीदा क्या? मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतहर में हयात के हैं, और आपके अहमद रजा ने इतना बड़ा शुक्र किया कि अंबिया की बीवी को बोल दिया कि वहाँ पेश किए जाते हैं और शब्बासी फरमाते नौज़ुबिल्लाह। आपके अहमद रजा तो काफी हो गए मेरे भाई, और शाह इस्माइल दहलवी नहीं हुए को बोल दिया कि पेश कर दिया गया। एक मिनट, रजा अपनी माँ के बारे में नहीं बोला कि मेरे माँ पेश की जाती है। शाह इस्माइल दहलवी नहीं हुए जी, शाह इस्माइल दहलवी नहीं हुए क्या काफिर? शाह इस्माइल दहलवी तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जैसे अल्लाह के। अरे जनाबे मन, ये बताओ उनके जो बराबर है, उनके बराबर है, इनके कुफ्र का क्या करोगे जो किताब में लिख गए वो? उनके बराबर है, उनके एक काफिर उनके बराबर कैसे, एक वली के बराबर एक काफिर कैसे हो सकता है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि गौस पाक काफिर है? आज शाह इस्माइल दहलवी काफिर है। शाह इस्माइल दहलवी, उन्होंने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 100 पर लिखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। स्कैन भेजूं? हमारी किताब, अब सुन लीजिए मेरा, इसी तरह अगर आपकी बात मान ली जाए, इसी तरह आपकी बात मान ली जाए तो बुखारी शरीफ में है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फातिमा ज़हरा को जान रहे हैं ना मेरे भाई? बताएं। ये भी करोड़ों वर्ष से अफजल है, मैं जानते ही होंगे आप। एक भी इनके बराबर में नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मानने पे मजबूर है, ऐसा बोलिएगा। ये चीज आपके अंदर शाह इस्माइल दहलवी भर के गए ना कि अगर किसी अल्लाह वाले की तारीफ करो तो पहले करोड़ों गौसों की बेअदबी कर दो। कैसे बेअदबी कर दिए, कैसे बेअदबी कर दिए? अरे जनाब, जब वो अफजल है तो बार बार क्यों दोहरा रहे हैं आप? वो तो है ही अफजल। नहीं, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोग गौस पाक के बारे में मैं जैसा सुनता हूँ कि गौस पाक इतने बड़े हैं कि उनका कदम वलियों के गर्दन पर, आपका अहमद रजा ने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि जिस घोड़े एक सहाबी जिस घोड़े पर बैठे हों और उस घोड़े की चाप से उड़कर नाक में जो धूल चली जाए मैं उसके बराबर भी नहीं, और यही हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब इस बात को ना दोहराएं। आप ये बताएं कि तक़वियतुल ईमान में शाह इस्माइल दहलवी ने जो लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, तो वो लिहाजा सहाबाए किराम और आइम्माए किराम के अकीदे के खिलाफ गए और कुफ्र के घाट उतर गए। तो आप अभी आप जनाब क्या कह रहे थे मुझसे? सुने, अगर सहाबा के अकीदे के खिलाफ जाएंगे तो फिर हम उन्हें लतिया देंगे, तो अभी आप लतियाए नहीं रहे हो। नहीं, आप बोल रहे हैं ना मेरे भाई, क्योंकि वो सहाबा वाले हैं और आप बाबा वाले हैं। आप हमेशा बाबा बाबा करते हो, शाह इस्माइल सहाबा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने तो सहाबा के खिलाफ लिख दिया। अब निकालेगा उन्होंने तो सहाबा के खिलाफ लिख दिया, इसका क्या करोगे? मेरे भाई शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक़वियतुल ईमान में शिर्क और बिदअत का जो उन्होंने भट्ठा बैठा दिया और बाबा का जो न्याद फाते जैसा गंदा काम का भट्ठा बैठा दिया और सहाबा कराम की इतनी तारीफ कर दी कि सहाबा के दुश्मनों के तन बदन में आ जाएंगे, जब हम क्रूस का नहीं लगाएंगे
अब हम न्याज खाते देखो नमाज पढ़ना होगा तो वो आप बोल रहे हैं मेरे भाई, किसी ने नहीं कहा। और आपको हमारे लिए बिल्कुल हुज्जत नहीं है। आप बोल रहे हो काफिर, तो हम थोड़ी काफिर मानेंगे मेरे भाई। चलिए हो गया आपका, अब आप खामोश रहे, ठीक है, आप मुझे बोलने दें। हमसे जब इनकी बात हुई तो इन्होंने ये कहा कि सहाबा इकराम के अकीदे से जो हटेगा हम उसको लात मारेंगे, ठीक है। तो लिहाजा शाह इस्माइल दहलवी की, खामोश रहे, शाह इस्माइल दहलवी की तक़वियतुल ईमान पेज नंबर 100, उस पे उन्होंने लिखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, मादअल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन सहाबा इकराम का ऐसा अकीदा था ही नहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। जैसे कि सबे मेराज के वाक़ये में हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, तो नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। सहाबा का भी यही अकीदा था और उम्मत का, मुहद्दिसीन का, सल्फ सालेहीन का, सबका इस पर इजमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, हयात है। लेकिन शाह इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान पेज नंबर 100 पर लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। तो लिहाजा शाह इस्माइल दहलवी का अकीदा सहाबा किराम से अलग हुआ और मुहद्दिसीन से अलग हुआ, सारे सल्फ सालिहीन से अलग गया। अब मैं जवाब, ठीक है, अगर इसका आप कोई जवाब दे रहे हैं तो दें, वरना मैं आपका फिर फोन काटता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब आप खाली लफाजी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप न्याज फातिया वालों को यही कमजोरी है कि दो बंदियों को देके भाग जाते हैं। जवाब सुनिए। अरे जनाब, तो जवाब देना। अब आप कह रहे थे कि हाँ मैं लात मारूंगा, लात क्यों नहीं मार रहे आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अपने रोज़े अथर में हयात से हैं, ये हमारा भी अकीदा है। जो वस्ताक जैसे अल्लाह के वली कासिम साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह जो हुज्जतुल इस्लाम है, और उनके बाद इतना बड़ा आलिम कोई और उतने वली पैदा नहीं हुए उनके वक्त में, उन्होंने भी लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अथर में हयात में। जहाँ तक शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा, तो वो उनका कहने का वो कतई मतलब नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अथर में हयात में नहीं। उन्होंने तो इस किताब में अपना मतलब लिखा ही नहीं, आप कहाँ से अपना मतलब बयान कर रहे हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हमारा नहीं, उन्होंने तो इस किताब में अपना मतलब लिखा ही नहीं ना। अकीदा बताने वाले अब नबी नहीं, उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया। अब आप अपना मतलब तो उनका निकाल रहे हैं, उसमें उन्होंने तो लिखा ही नहीं है कि मेरा ये मतलब है, वो मतलब है। हम उनको नहीं बचाएंगे तो फिर हम अहमद। अरे तो जनाब, आप उनको बचाने के चक्कर में खुद जहन्नुम में जा रहे हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हम हैं मतलब क्या बोलते हैं, जन्नत अल्लाह की है ना, और जन्नत जो है अल्लाह देंगे मुवहिदों को, मुशरिकों को, कब्र पूजने वालों को थोड़ी देंगे मेरे भाई। अल्लाह तो खुद फरमा दिया कि हम कब्र नहीं, तो अल्लाह जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का इनकार कर रहा है उसे जन्नत देगा। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह ये कह रहा है, उसे जन्नत देगा। तो जैसा कि हज़रात आपने सुना कि इन्होंने ये दावा किया था कि हम सहाबा इकराम के तरीक़े पर हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनसे जो हटेगा हम उसको नहीं मानेंगे। तो हमने जब इनके ही मौलाना की इन्हें इबारत दिखाई कि उन्होंने तो ये लिख दिया है माअल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, ये सरी तौहीन है कि मिट्टी में मिल गए। तो हमने इनसे कहा ये तो अकीदा किन्हीं का भी था ही नहीं। तो अपने इमाम का ईमान बचाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने जो तौहीन की है उसे नहीं देख रहे हैं और उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कर नहीं पा रहे हैं और कर नहीं पाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने लगे, उन पर झूठ बोलने लगे। तो अब हम एक बार में एक ही बात का तो जवाब दे सकते हैं ताकि उसका बेहतर जवाब आ सके। ठीक है, हम कोई भी शख्स ये बेहतर जानता है कि एक बार में एक ही बात का जवाब दिया जा सकता है और देना बेहतर होता है ताकि वो बात मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये कह देते कि शाह इस्माइल दहलवी ने ये गलती की है, कुफ्र किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर भी बात करते जो कि ये उन पर झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना और इनकी जहालत सामने आई, तो ये लोग कितने बड़े मक्कार होते हैं। दावा अल्लाह रसूल का होता है, सहाबा का होता है, लेकिन पैरवी अपने इमामों की करते होते हैं ये देवबंदी वहाबी। तो आपसे बस इतना कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम को भी फ़ायदा हासिल हो और इनके बुरे अकायद से बच सकें। ठीक है, और दुआओं में याद रखें।